یہ اونچے پائجامے والے نجدی وہابی دیوبندی کہتے ہیں ماشاءاللہ رسول تو مر کر مٹی میں مل گئے، رسول تو مر کر مٹی میں مل گئے، ان کو کوئی علم نہیں حضرات، مگر حدیث و قرآن کے حوالے سے اللہ قرآن میں اپنے نبی کو نور کہتا ہے، جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشن کتاب، نور سے مراد رسول پاک، کتاب سے مراد قرآن پاک، یعنی جسے کتاب کہا گیا ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جسے نور کہا گیا ہے وہ رسول پاک ہے۔ حضرات وہی نور ایسا نور ہے کہ حضرات میرے آقا علیہ السلام ماں کے شکم میں تھے، کائنات جگمگا رہی تھی، کائنات جگمگا رہی تھی جیسے ہی ماں کے شکم میں آئے۔ اور حضرات ایک دو حدیث میں نور کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان گندھوروں سے آپ کا عقیدہ بالکل پاک و صاف ہو جائے، مگر پاک و صاف اسی کا ہوگا جس کے دل میں مدینے والے آقا کی سچی محبت ہوگی، سچا پیار ہوگا، سچی لگن ہوگی، کیونکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر آج ہمارے پاک کو کوئی غلط کہے تو ہمیں گوارا نہیں، ہماری بنائی ہوئی چیز کو کوئی غلط کہے تو ہمیں گوارا نہیں، مگر یاد رکھنا وہ ہمارا باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہماری ماں، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہمارے کوئی رشتے دار، کوئی رشتے دار قبر میں نہ کام آئیں گے، مگر یاد رکھنا مدینے والا آقا قبر میں کام آئے گا، میدان محشر میں کام آئے گا۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اور نبی پاک کی بیوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں سل رہی تھی، کپڑا سل رہی تھی اور میری سوئی اچانک میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کے اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی، اتنی روشنی نہ تھی کہ وہ سوئی میں تلاش کر سکوں، ڈھونڈ سکوں، بہت تلاشا مگر سوئی نہ ملی۔ یہ روایت کسی کے باپ کے در کی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کی بیوی خود راوی ہیں، وہ خود بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، اور حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں معذاللہ میرے آقا پاور والے نہیں ہیں، میرے آقا گھاٹی والے نہیں ہیں، میرے آقا اور ان کی بات جو سنی مانتے ہیں، جو سنی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں غلط کہا جاتا ہے، کیوں ان کی برائی کی جاتی ہے، کیوں ان کا نام لے کر ان کی رد کی جاتی ہے، اگر سنو جو میرے آقا کے نور کو قرآن کہے نور ہے، صحابہ کہے نور ہے، اولیاء کرام کہے نور ہے، وہ خلفائے راشدین کہے نور ہے، ائمہ مجتہدین کہے نور ہے، تو اولیاء کرام کہے نور ہے، تو شہداء کہے نور ہے، اور یہ وہابی دیوبندی کہے نور نہیں، مگر مٹی میں ہو گئے ہیں۔ وہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا نہ وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے نہ ہم اس کا دوست ہو سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں خدا عائشہ صدیقہ فرماتی، اور انکار کرنے والوں کے بارے میں آج سے بہت دن پہلے حضور سید آل رسول مہرانوی نے کہہ دیا تھا کہ لوگوں جو انکار کرتے ہیں یعنی رسول کے اختیار کا، رسول کے پاور کا، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ انکار علم مصطفیٰ گھٹی میں تیری ہے بسا۔ سید نظمی میاں مہرانوی کہتے ہیں کیا انکار علم مصطفیٰ گھٹی میں تیری ہے بسا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا تو کٹی پتنگ، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا تو کٹی پتنگ ہے۔ اور فرماتے ہیں سنی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، سنی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے۔ تو جو سنی دبنگ ہوگا، جو سنی پاور والا ہوگا، جو سنی بڑھنے کی طاقت لے کر اعلیٰ حضرت کی محبت لے کر نکلے گا، وہ یہی کہتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش کے مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے دلے گرفت میں جائیں گے، وفات ہو جائیں ادو جل کر مگر اندر بجاؤ ہم میں جب تک دم ہے میدان سرکار مدینہ، میدان غوث اعظم، میدان خواجہ غریب نواز، میدان مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج السریہ، واسطے واسطے کریا کریا
तैयबा ताहिरा बयान करती कि मेरी सुई अचानक गिर गई, मैं उसको न तलाश कर सकी, इतने में मेरे आका आ गए, रहीमा का आ गए, करीमा का आ गए और उन्होंने पूछा, है आयशा तुम क्यों परेशान हो? और वो मुस्कुराए। मैं कुछ न कह सकी कि इतने में उनके मुस्कुराने से इतना नूर फैल गया, इतनी रोशनी फैल गई कि मेरी जो गुमशुदा सुई थी वो फौरन मुझे मिल गई। सुभान अल्लाह, मेरी गुमशुदा जो सुई थी वो फौरन मिल गई। वो बयान फरमाती, मैंने सुई को उठाया, फिर कहा, ए मेरे रहीमा का करीमा का, मैं इतनी देर से सुई तलाश कर रही थी, ये सुई मुझे न मिल रही थी, आप आए, आपने मुस्कुराया तो मेरी गुमशुदा सुई मिल गई। अब आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अंधेरी रात हो और मेरे आका मुस्कुरा दे तो इतनी रोशनी हो जाए कि सुई तलाश कर ली, सुई मिल जाए, तो अगर मेरे आका कब्र में मुस्कुरा देंगे तो फिर हम गुनहगार का काम बन जाएगा। और दूसरी रिवायत, एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम कुछ दीनी गुफ्तगू, दीनी तबलीग का काम कर रहे थे, दीनी पैगाम सहाबाए किराम तक नश्र कर रहे थे। इतने में रात का हिस्सा ज्यादा गुजर गया और रात अंधेरी थी। सहाबाए किराम तो उसमें ऐसे बैठे थे जो दूर के थे, उनके पास कोई रोशनी का इंतजाम न था। जानवर, दरिंदे और इज़ा पहुंचाने वाले जानवरों का बड़ा खतरा था। तो कहा, या रसूलल्लाह, रात का हिस्सा तो ज्यादा गुजर गया, हम लोग घर तक कैसे जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, कोई रोशनी का इंतजाम भी नहीं है। तो आओ देखो, ये मिशकात शरीफ की हदीस और तमाम मुतबा हदीसों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी उठाई और अपने हाथ में लिया और उसे हाथ से मस करके सहाबी को दे दिया, आए सहाबी ले जाओ, ये ज्यादा का काम करेगी। अब वो सहाबी बयान करते हैं, हम लोगों ने उसको आगे जो है करके चले आए, तो इतनी रोशनी रही कि हम लोग आराम से घर तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह, मेरे आका का हाथ अगर लकड़ी में लग जाए तो वो रोशनी का काम करे, बल्ब का काम करे। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत खवा से रहमान फतूहाती का सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हज़रात, वो मेरे आका रहीमा का करीमा का है, जिनकी विलादते व सआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ सोमवार के दिन और सूरत निकलने से पहले हुई। हम सुन्नी सही अकीदा कोई गलत काम नहीं करते हैं। विलादत से पहले, ये भी हदीस में मौजूद है, विलादत से पहले अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वजहू करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, बुलबुल सिदरा, अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी करो, जन्नत में जाओ और 3 झंडे लेकर जाओ, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अब्दुल्लाह के आंगन में गाड़ दो। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी से इसीलिए आज तक मनाज़रे में कोई वहाबी जीता ही नहीं है, क्योंकि बातिल बातिल ही रहेगा, झूठा झूठा ही रहेगा, और जो हक्का होगा, जो सहाबा के किरदार फॉलो करता होगा, जो औलिया किराम के किरदार फॉलो करता होगा। और आज जो लोग हारते भी हैं या जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता है मगर वो बोल देते हैं। वही बात बोलना चाहिए, जो बात पढ़ लो, जो बात देख लो, जो बात लिखी हो। हमारे अकाबिर जो मनाजिर हैं वो आज तक ललकारते रहे वहाबियों को, क्या आओ, झंडे का सबूत कुरान में है, झंडे का सबूत हदीस में है, झंडे का सबूत हदीस में है, मगर कोई सामने में आया। हज़रात, आज झंडे से जो लोग चिढ़ते हैं, झंडे से हसद करते हैं, झंडे से जलन करते हैं, मगर हम सुन्नी झंडे से प्यार करते हैं, झंडे से मोहब्बत करते हैं, झंडे को अपने घरों पे लगाते हैं, दुकानों पे लगाते हैं, मकानों पे लगाते हैं, और झंडे को अपने हाथ में पकड़ करके नबी की विलादत बसादत के मौके पर गली गली घुमाते हैं, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हैं, क्योंकि ये हम बताते हैं दुनिया वालों को, दुनिया वालों, देख लो हम सच्चे नबी के मानने वाले। अच्छा, झंडे अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील 3 झंडे ले जाओ। इसकी रिवायतें 2 हैं, एक ये, एक मशरिक में, एक मगरिब में। मशरिक मगरिब का मतलब कि एक पूरब के कोने में, एक पश्चिम के कोने में, और एक हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में। और एक रिवायत में है कि एक झंडा
काबे की छत पर, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर, और एक झंडा हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के आंगन में गाड़ दो। हजरत मोहतरम ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए और झंडों को लगा दिया। तो अब पता चला कि हम अगर अपने घरों पे झंडा लगाएंगे, अगर बाप बेटे से कहेगा बेटा झंडा लगा दे, बेटे ने झंडे को उठाया और झंडे को एक किसी लकड़ी से लगाकर और उसे ऊंचा करके बांध दिया। अब पता चला कि कहने वाला जो बाप कह रहा है बेटा झंडा लगा दे, तो बाप जो है वो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहा है, लगाने वाला बेटा जो लगा रहा है वो हजरत जिब्रील की सुन्नत अदा कर रहा है। तो हम सब सुन्नत पर नाम अमल करते हैं। हमारा काम हदीस और कुरान की रोशनी में होता, वो चले, वो हसद करें, वो करें जिनका कोई अगवाकार ना हो। हमारा रहबर तो मदीने का आका, हमारा आका, क्योंकि आज वही जो कहते हैं झंडा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, एक रिवायत में ये है कि सफेद झंडे लगाए, सफेद झंडे। तो कुछ लोग एतराज कर देते हैं कि जिब्रील अमीन ने तो सफेद झंडा लगाया था, अल्लाह ने तो सफेद झंडा लगवाया था, आज सफेद क्यों नहीं लगाते हो, हरा क्यों लगाते हो? तो पता चला इसको भी आप समाअत कर लें। सफेद झंडा जब मेरे आका पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले जब कोई जंगो जिदाल होता, कोई आपस में टकराव होता, तो उस वक्त के लोग सफेद झंडा नस्ब कर देते, तो वो लड़ाई रुक जाती थी, झगड़ा रुक जाता था, वो जंग रुक जाती थी, क्योंकि अमन और सलामती का, अमन और शांति का उस वक्त झंडा सफेद माना जाता था। तो इसलिए अल्लाह ने कहा मैं अमन और सलामती वाला रसूल भेज रहा हूँ, अमन और सुकून वाला रसूल भेज रहा हूँ, बच्चियों को बचाने वाला रसूल भेज रहा हूँ, मैं पूरी कायनात को आजाद करने वाला रसूल भेज रहा हूँ। तो अमन और शांति का झंडा लगा दिया जाए, मशरिक में भी लगा दिया जाए, मगरिब में भी लगा दिया जाए, और दुनिया के आगे में भी दाव दिया जाए, ताकि यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक पूरी कायनात में अमन और सलामती का दौर होता है। और यही तक नहीं, मेरे आका जब पैदा हुए तो चरिंद परिंद मलाइका और शजरो हजर सब पढ़ते थे क्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अब एक रिवायत सुनो, ये तो झंडा, और इस वक्त अमन और सलामती का झंडा जो है वो हरा झंडा माना जाता है, और बेहतर यही है कि हम और आप हरा झंडा लगाएं। और जो लोग बरेली शरीफ से झंडा लाकर आते हैं, लगाते हैं, रोजा बना, कलमा शरीफ लिखा, उसका एहतियात रखा करें, अगर वो फट जाए, गिर जाए, तो उसको अदब और एहतराम से कहीं पर दफन कर दिया करें, इसलिए क्योंकि उसमें कलमा शरीफ लिखा होता, इसका बड़ा एहतियात करना चाहिए। और हज़रात मोहतरम अब आइए, हज़रत आमिना मेरे आका, जो लोग कहते हैं कि रसूल पावर वाले नहीं, रसूल अपनी बेटी के काम नहीं आए माज़अल्लाह, तो हम और आपको क्या बचाएंगे? आओ देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, उससे पहले हजरत आमिना तैयबा ताहिरा, हजरत आमिना जो सरकार अलैहिस्सलाम की माँ है, वो बयान करती है कि जब विलादत बसारत का वक्त आया तो मैं कमरे के अंदर थी, और कमरे के अंदर यानी रहकर, तो कमरा और घर ये कहाँ है? ये मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ कहाँ है? मुल्क अरब में है। अब वो बयान फरमाती हैं कि जब विलादत बसारत का वक्त आया तो अल्लाह ने मेरी आंखों में इतनी रोशनी दे दी, इतना नूर दे दिया, इतनी मेरी आंखों में रोशनी आ गई कि मैं अपने कमरे में रहकर मुल्क शाम के महलात देख रही हूँ। सुभान अल्लाह। अरब कहाँ है? मक्का का। आज हम इस मस्जिद में रहकर मस्जिद के पीछे रोड पर क्या नहीं देख सकते, मगर आका की माँ बयान फरमाती है कि मैं मुल्क शाम दूसरा मुल्क है, उस मुल्क शाम के महलात देख रहे हो। अब आप अंदाजा लगाओ ए लोगों कि जब उनकी माँ की आंखों का यह आलम है कि अल्लाह ने करम फरमाया कि वो नबी जलवागर होने वाला है, तो उनकी आंखों में वो रोशनी अता कर दी, इतनी ताकत अता कर दी, इतना पावर अता कर दिया कि वो अपने कमरे में रहकर मुल्क शाम के महलात देख रहे। अब आप अंदाजा लगाओ, फिर जब बच्चा पैदा होता है उम्मूमन तो सीधा बच्चा पैदा होता है, सर ऊपर होता है, चेहरा ऊपर होता है, मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है जब मेरा बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ तो इसका सर ऊपर नहीं है, आम बच्चों की तरह नहीं। जब मेरा बच्चा पैदा हो रहा है तो सर नीचे को है, और सजदे में जिस तरीके से आदमी सजदा करता है ऐसे मेरा बच्चा पैदा हुआ, ऐसे बाहर आया, कोई गंदगी नहीं,
को याद कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं। फिर जब कब्र में आपको रख दिया गया, आपका वसाल हुआ, और वसाल बनने के बाद जब कब्र में रखा गया और मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहहु जो दामाद मुस्तफा है वो बताते हैं, मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे आका अलैहिस्सलाम कोई वसीयत करना चाह रहे हो, तो मैंने कब्र के अंदर उतर करके और फिर मोट मुबारक से कान लगाया कि क्या आका कह रहे हैं, क्या वसीयत फरमा रहे हैं। तो लोगों तुम्हारा सुनना, अपने सीने पर हाथ रख करके सोच लेना कि तुम्हें आका कितना याद कर रहे हो, तुम अपने आका को कितना याद करते हो, तुम अपने आका पर कितना जुल्म करते हो, तुम अपने आका को कितना मानते हो। याद रखना, जब पैदा हुए तो उम्मतियों को याद करते रहे, पूरी जिंदगी अपने गुनहगार उम्मतियों को याद करते रहे, और उसके बाद जब कब्र में रख दिया गया, हज़रत अली बयान फरमाते, मैंने कान लगा करके सुना कि मेरे आका क्या अर्ज़ कर रहे हैं, अपने सीनों में अपने नबी की मोहब्बत बताओ। आज वो लोग जो कहते हैं कोई ताकत वाले नहीं, कोई पावर वाले नहीं, उनकी माँ जो बयान फरमाती है कि मैं मुल्क शाम के महलात देख रही थी, तो जब उनकी माँ की निगाहों के नूर का ये आलम है तो रसूल पाक के निगाहों के नूर का आलम क्या होगा। इसलिए अल्लामा जमीलुर रहमान फरमाते हैं कि रोशनी में जिनकी देखा आमिना ने मुल्क शाम, आला हज़रत के खलीफा हैं और बरेली शरीफ के ये अल्लामा जमीलुर रहमान है, जहां आला हज़रत के भाई उस्ताद ज़मन, आला हज़रत के बाप अल्लामा नकी अली, आला हज़रत के दादा अल्लामा रज़ा अली की कब्र शरीफ बनी हुई है। बहुत से लोग गए हैं मेरे साथ, जो गए हैं, और बहुत से नहीं गए हैं। वो कब्रिस्तान जो है जहां आला हज़रत के खानदान के लोग मौजूद हैं, वहीं पर अल्लामा जमीलुर रहमान भी रहते हुए, तो वो बयान फरमाते हैं कि रोशनी में जिनकी देखा आमिना ने मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। ए लोगों, इसलिए मेरे आका की नूर को अल्लाह ने बयान फरमाया है कुरान में कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर, एक रोशन किताब। पता चला हम सुन्नी जमात अहले सुन्नत के मानने वाले, हम आका को नूर मानते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे अपने आका को नूर मानते रहेंगे, और नूर मान करके तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हारा आलम यही होगा। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। रसूल पाक को हमने नबी, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने, रसूल पाक को सबने खुदा का नूर माना है। तो हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। जब हमने नूर मान लिया तो हमारी कब्र में नूर ही नूर होगी। इसलिए लोगों, नबी पाक की मोहब्बत में जियो और नबी पाक की मोहब्बत में मरो, और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस झंडे के मुनकिर हैं कि ये झंडा नहीं लगाएंगे, ये झंडा नहीं लगाएंगे, इस झंडे से चिढ़ते हैं, उनके भी मकान पर देखना तुम, जो झंडा हराम है वो लगाते हैं। अच्छा हराम क्या है? पार्टी का झंडा, देश का झंडा तो हम लगा ही सकते हैं, मगर जब इलेक्शन होता तो जब उसमें तस्वीरें बन बन करके आती, तो तस्वीर जिस घर में लगाई जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इसलिए जिसमें तस्वीर बनी होती है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, तो अपना झंडा बड़ी शौक से लगाते हैं। वो वहां भी देवबंदी भी लगाते हैं, अपने मकानों पे बुलंद करते हैं, बड़े बड़े झंडे लगाते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरों के झंडे लगाते हैं। तो हजरात, पता चला कि रसूल की पैदाइश का झंडा तो जायज नहीं है, हराम है, नाजायज है, नहीं लगाएंगे। मगर इस पार्टी का झंडा लगाते किस लिए? कि हम सपा पार्टी का या इस पार्टी का या उस पार्टी का लगाएंगे, ताकि अपने घर पे जब झंडा लगाएंगे तो लोग समझ जाएं कि झंडा लगाते हैं, ताकि ये जो इस पार्टी का झंडा लगा है ये इस पार्टी में है, जो उस पार्टी का झंडा लगा है वो उस पार्टी के हैं, ये पता चल जाए। मगर उन्हें पता नहीं है, और
26 जनवरी को तो झंडा लगाया जाता है, रैली निकाली जाती है, बच्चों के हाथों में झंडा होता है, ये हराम नहीं है, ये नाजायज नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त को आप बेहतर है, हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे देश का संविधान बना है, बेहतर है तुम देश का झंडा लगाओ, देश के गुण गाओ, देश को जो है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कह भी दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलशता हमारा। तो जिसको गुलशता कहा है किसी बाप ने नहीं कहा है, हमारे डॉक्टर इकबाल ने कहा है। तो इसलिए हम देश से गुण गाएंगे, हम देश को हम ये नहीं कहते हैं कि 15 अगस्त को झंडे ना लगाओ, 15 अगस्त को रैली ना निकालो, 15 अगस्त को जुलूस ना निकालो, 15 अगस्त को 26 जनवरी को भी हम जुलूस निकालेंगे, क्योंकि ये देश के लिए है, ये भारत हमारा आजाद हुआ है। 15 अगस्त को भारत का संविधान बना है, 26 जनवरी को याद रखना, 26 जनवरी को झंडा निकालते हैं, 15 अगस्त को झंडा निकालते हैं, हमारे देश की आजादी की, भारत की आजादी की खुशी में याद रखना, उस झंडे से जुड़ते हैं, उस झंडे से असर करते हैं। अरे मेरे आका की जो आमद का झंडा है, 15 अगस्त का झंडा, ये देश की आजादी का झंडा है, 26 जनवरी का झंडा संविधान का झंडा है। याद रखना मेरे आका की आमद की खुशी का जो झंडा है, ये पूरी कायनात का आजादी है, उस आजादी का झंडा है। क्योंकि जब बच्चियां दफन की जा रही थी, जब बच्चियों का बाप गला घोट करके दफन कर देता था, कोई बचाने वाला नहीं था। मगर याद रखना जिस दिन से हमारा आका दुनिया में आया, ऐलान करता हुआ आया, अब बच्चियां दरगोर नहीं की जाएंगी, क्योंकि जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाएगी वो सात रहमत अल्लाह की नाज़िल होगी उसके घरों पर। तो इसलिए ये सारे झंडे जो हैं ये हमारे हिंदुस्तान तक के हैं, मगर याद रखना हमारे नबी की जो गुलामत का झंडा है, ये पूरी कायनात की आजादी का झंडा है। इसमें पूरी कायनात आजाद हुई है, पूरी कायनात को आजादी हासिल हुई है। ये बच्चियां सबसे ज्यादा एहसान माने रसूल आजम रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम का, क्योंकि बच्चियों को अपना बाप जो खुद ले जा करके जिंदा दरगोर कर देता था, कितना नाजुक दौर था। मगर याद रखना जैसे ही रही माँ का है तो ऐलान करते हुए आए, अब कोई भी बच्ची अपने बाप के हाथों दफन नहीं होगी। इसलिए इन बच्चियों को जिंदगी देने वाला आ गया है। जिसका शौहर मर जाता था उस औरत को मनहूसा समझा जाता था, ये बहुत बड़ी मनहूस औरत है ये, क्योंकि कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता था कि उसकी चिता पर जब उसके शौहर को जलाया जाता था, उस औरत को गिरा करके उसी पर जला दिया जाता था। मगर कहीं कहीं पर अगर जलाया नहीं जाता था तो उसको कैद में डाल दिया जाता था, खाने पीने के लिए गंदी गंदी चीजें दी जाती थी, और जब उसको कई सालों के बाद निकाला जाता था तो उसके दाल में ऊंट की मिंगियां, ऊंट की लीद गोबर दे दी जाती थी, और उसे निकाला जाता था रोड और उससे कहा जाता था इसे फेंक के भेज लो, और ऐलान किया जाता था ये मनहूस औरत है, ये मनहूस औरत है, इसका शौहर मर गया। मैं याद रखना मेरा आका जब पैदा हुआ तो 25 साल की उम्र में सबसे पहले 40 साल की बेवा हज़रत खदीजा से निकाह करके दुनिया वालों बेवाओं का रुतबा बढ़ा दिया और ऐलान कर दिया, ए दुनिया वालों जो बेवा से शादी करेगा मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी पर तरह तरह की उंगलियां उठाते, मगर मेरे आका आज का है कोई जवान कि 40 साल की औरत से कोई शादी करेगा पहली, मगर मेरे आका की बीवियां निकाह में तो गहरा है, मगर सारी की सारी बेवा सिर्फ एक हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा जो है वो कुंवारी थी, बाकी सारी, और ये भी बाद में निकाह किया है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, मगर सारी और सबसे पहला जो निकाह किया है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से किया है। ए दुनिया वालों कैसा दर्स हमारे आका दे रहे हैं, कैसा प्यार हमारे आका दे रहे हैं, किस तरीके से बेवाओं का रुतबा मेरे आका बढ़ा रहे हैं। इसलिए ए लोगों आका की मोहब्बत में जियो, आका की मोहब्बत में मरो, और हमेशा ये याद रखो कि हमारे आका जो पैगाम देंगे वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में मौत आए। अब ये ऐलान आप हज़रात समाप्त कर लें।